السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، نگراں کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ اور اقتصادی بحالی کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں کی جانب سے منصوبے اور روڈ میپ پیش۔ ایپیکس کمیٹی کی منصوبوں کو جلد عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری۔ نگراں وزیر اعظم کی سرمایہ کاری کے لیے مجوزہ منصوبوں پر معینہ مدت میں عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ متعلقہ وزارتیں اقدامات پر عمل یقینی بنائیں۔ قلیل مدت کے باوجود نگراں حکومت کو معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ان اقدامات کے نفاذ سے آئندہ منتخب حکومت کو بھی اقتصادی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ خصوصی سہولت کونسل کے تحت اقدامات جاری ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اقتصادی اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں۔ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ میکرو اکنامکس مینجمنٹ پر توجہ مرکوز ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی وفاقی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ مسائل کے مستقل حل کے لیے کوشاں ہیں۔ توانائی کے شعبے میں نقصانات میں کمی اور وصولیاں بہتر کی جا رہی ہیں۔ صنعتی پہیہ چلانے کے لیے گیس کی دستیابی ضروری ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ نگراں وزرائے توانائی محمد علی اور گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا، 1 روپے 99 پیسے کی کمی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی روپیہ 3 روپے تگڑا۔ 3 روز میں ڈالر کی قدر میں 28 روپے سے زائد کی کمی ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، 256 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 46,013 پر بند ہوا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تقسیم کار کمپنیوں کے مختلف شہروں میں چھاپے، ملوث افراد کے خلاف مقدمات کا انجراج، بڑے پیمانے پر جرمانے بھی عائد۔ چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج، ہول سیل اور ریٹیل قیمت میں نمایاں کمی۔ ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، شہریوں کا حکومتی اقدامات کا خیر مقدم۔ چترال میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ تعلیمی ادارے، اسپتال اور بازار کھلے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹیں بنا دی گئیں۔ چترال کے غیور عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، مادر وطن کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ رہنے کا عزم۔ کسی بھی دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مسلم ورلڈ لیگ کے ریجنل ڈائریکٹر سعد بن مسعود الہار بھی ملاقات میں موجود۔ سمندر کے سینے پہ لکھی جانے والی ایک انمٹ داستاں، قصہ دلیری کا، جس میں دشمن اپنے ہی گھر میں مقید ہوا۔ توار کا ایک حقیقت ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ سمندری حدود کے پاسبانوں کو قوم کا سلام۔ ملک بھر میں یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ کا بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ۔
ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को राख का ढेर बना डाला। पाक नेवी को समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए कुर्बानियों पर कौम का खिराज तहसीन। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब। रेडार स्टेशन तबाह करने के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। दिफाए वतन और मैरीटाइम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां मामूल बन गईं। हुर्रियत क़यादत की G20 ममालिक से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। भारतीय हुकूमत आलमी कवानीन और वादों की धज्जियां बिखेर रही है। मोदी हुकूमत की जवाब तलबी की जाए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत, मुतअद्दिद यूक्रेनी हमले पसपा। 41 ड्रोन्स और 10 मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए गए। दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और दीगर अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा। शुमाली कोरिया जौहरी आबदोज बनाने में कामयाब। लॉन्चिंग तकरीब में किम जोंग उन और मरकजी क़यादत की शिरकत। बहरिया को मज़ीद जौहरी आबदोज फराहम करने का ऐलान। एटमी हथियारों से लैस आबदोज अहम कामयाबी है। रहनुमा शुमाली कोरिया किम जोंग उन। समंदरी तूफान हाईकुई के असरात। हांगकांग में शदीद बारिशों का 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें और सबवे स्टेशन ज़ेरे आब। घरों और दीगर इमारतों में भी कई फीट पानी दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर 4 मरहला। श्रीलंका और बांग्लादेश कल कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच देखिए दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एशिया कप में एक मर्तबा फिर होगा बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच इतवार को कोलंबो में शेड्यूल। बारिश के पेश नजर रिजर्व डे भी रख दिया गया। इतवार को मैच न होने की सूरत में पीर को खेला जाएगा। विमेन्स वनडे सीरीज कराची में पहले मैच में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के लिए 293 रन का हदफ। मैरिजिन के पर्सनलेस की सेंचुरियां। दोनों के दरमियान 183 रन की शराकत। पाकिस्तान की जानिब से नशरा सिंधु की 2 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और US ओपन टेनिस। अमेरिका की कोको गॉफ और बेलारूस की आरियाना सेबेलेंका फाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल्स में कोको गॉफ ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मिचोवा को हरा दिया। आरियाना सेबेलेंका की अमेरिका की मेडिसिन कीज के खिलाफ कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। आर्मी चीफ, वज़राए आला, निगरान काबीना के अरकान और आला हुकाम इस इजलास में शरीक हुए। एपिक्स कमेटी ने मुल्क में माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात का जायजा लिया। कमेटी को मुताल्लिका वजारतों की जानिब से सरमायाकारी राग़िब करने और इस सिलसिले में रुकावटें दूर करने के लिए लाहे अमल के बारे में ब्रीफ किया गया। इजलास में माशी और इंतजामी चैलेंजेस से निबुर्द आज़मा होने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। खसूसी सहूलत काउंसिल के तहत माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कलील, वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत के साथ इजलास में रेगुलेशन को मौसर और तेज़ बनाने के लिए जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। एपिक्स कमेटी ने सरमायाकारी के लिए मुजव्वज़ा मनसूबों को जल्द अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुताल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि मनसूबों पर मुअय्यना मुद्दत में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कलील मुद्दत के बावजूद निगरां हुकूमत इक्तसादी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इन इक़दामात के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी।
निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सुलंगी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, मोहम्मद अली और गौहर एजाज ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माशी तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कोशां हैं। तवानाई के शोबे में नुकसानात में कमी और वसूलियाँ बेहतर की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के 5वें इजलास के फैसलों पर न्यूज ब्रीफिंग में निगरान वफाकी वज़रा ने बताया कि SIFC के तहत माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मुशावरत हुई और अमली इकदामात की मंजूरी दी गई। इत्तलात और नशरियात के निगरान वजीर मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए अमली इकदामात उठाने का फैसला किया गया है। हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो हटाना, जिनमें वीज़ा पॉलिसी वगैरह वो भी शामिल है। जो नुकसान करने वाले जो रियासती इदारे हैं उनकी निजकारी और उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करना, ये भी शामिल थे। जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया कि निगरान वज़रा एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर आम शहरी को खुद मुख्तार बनाना तरजीह है, जबकि बेहतर गवर्नेंस के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है। हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व is a very high priority for us. निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क की मईशत में रोजगार खोलने की जरूरत है। आम आदमी के पास रोजगार होगा तो महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। इस लानत की रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी जो थी वो सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेजेस थी। एक्सपोर्ट को हमने टारगेट किया है, जो $5 बिलियन घटी है ना सिर्फ वो $5 बिलियन बढ़ानी है बल्कि उससे ज़्यादा टारगेट करना है कि कैसे बढ़ा के आवाम को जॉब्स क्रिएट हों और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। तवानाई के निगरान वफाकी वजीर मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस की बेहतरी पर बातचीत हुई। लाइन लॉसेस को कम करने के अलावा बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने पर भी गौर किया गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस की दस्तयाबी जरूरी है। गैस की किल्लत की बड़ी वजह गैस और तेल की तलाश में कमी है। हमें गैस और तेल की तलाश करने के लिए इकदामात करना होंगे। बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है, तो हम इंक्रीमेंटल सप्लाई जो इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा अगर यूज़ करती हैं बिजली, तो उनको ऐसा टैरिफ दें कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर लॉसेस ना हो, ताकि इंडस्ट्री स्मूथली चलती रहे। किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। लोकली अगर हमारे पास हमारे ही रिजर्व से ऑयल एंड गैस हम निकालेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और हमारी सप्लाई भी बेहतर होगी। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी लाने के लिए काम जारी है। आइंदा कुछ साल में मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत की काविशों और इक़दामात की बदौलत मुल्क में मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त क्रैकडाउन के हुकूमती फैसले के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹3.40 कमी देखने में आई। इस कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹302.95, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद ₹301 और कीमत फरोख्त ₹304 रही। आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत मुस्बित रहा। अब जो एक तरह से ड्राइव चली है स्मगलर्स के खिलाफ, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बल्कि उसके साथ साथ दीगर अजनास की, तो वो भी हमने देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है
और दीगर चीज़ों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। अब 3 महीने के बाद ओपन मार्केट है वो इंटरबैंक से नीचे आई है। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 24 रुपए की कमी देखने में आई है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए और 50 पैसे कम हुआ। रवां कारोबारी हफ्ते के आगाज में पीर के रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 325 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 328 रुपए थी। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से डॉलर जखीरा और स्मगल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। इस क्रैकडाउन के जारी रहने से डॉलर की कदर में मजीद कमी मुतवक्के है। डॉलर की कदर में कमी के बायस न सिर्फ मुल्क के ऊपर वाजिबुल अदा कर्जों के हजम में खातिर ख्वाह कमी होगी, बल्कि सनती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,013 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 86,800 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 5 अरब 55 करोड़ से जायद रही। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हजम 14 करोड़ से ज्यादा रहा। मार्केट में 311 कंपनियों का कारोबार हुआ, जिनमें से 166 के शेयर्स में इजाफा, 114 में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोना भी सस्ता हुआ और 4,000 रुपए की कमी के बाद फी तोला सोने की कीमत 2,12,500 रुपए हो गई। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए शहर कायद में भी कुंडा माफिया और बिजली के बिल अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। कराची में बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ कराची इलेक्ट्रिक का ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में कराची इलेक्ट्रिक की खुसूसी टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कनेक्शन और कुंडे खत्म किए हैं। कुंडा माफिया से तो बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब बिजली की बचत होगी तो हम लोगों को मिलेगी ना, हम लोगों को फायदा हासिल होंगे ना, और इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को ताउन करना चाहिए, कुंडे नहीं करने चाहिए, जहाँ कुंडे देखे इसकी शिकायत करनी चाहिए। आवाम ने कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुंडा होना ही नहीं चाहिए, अगर कुंडा होगा तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कुंडे के चक्कर के अंदर जो बेचारे प्रॉपर बिल भर रहे हैं उनको नुकसान ज्यादा है। हम उनका भुगत रहे हैं जो कुंडे ले रहे हैं, सजा उनको मिले जो कर रहे हैं काम। कराची इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का कहना है कि बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन जहां एक जुर्म है, वहीं इससे इलाका मकीनों की सलामती को भी खतरात लाहक होते हैं। हम मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश कर रहे हैं कि इन गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, क्योंकि जैसे जैसे बिजली की चोरी की शरह में कमी आती है और साथ ही साथ बिलों की अदायगी की शरह में बेहतरी आती है, तो इलाके के अंदर बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने में भी इदारे को फरोग मिलता है। के इलेक्ट्रिक ने आवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी कनेक्शन और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई में के इलेक्ट्रिक की टीमों की मदद करें, ताकि लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी आ सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब के अजला में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसकी तफसील बता रही हैं फरहाना खान। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल की एक वजह बिजली चोरी भी है, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान भी होता है। विफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया, जिसके बाद एक मौसर हिकमत अमली के तहत उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 दिन के दौरान 528 बिजली चोरी के केस सामने आए, जिस पर मुतल्लिका थानों में FIRs की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मजीद 9 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चोरी किए गए यूनिट्स की रकम का बेशतर हिस्सा मुल्जिमान से वसूल कर लिया गया है। ये कैंपेन जो चली है, इसके मुताबिक तकरीबन 63 मेगावाट्स की हम सेविंग करेंगे, जो हमारा 1.3% हमारी डिमांड का बनता है। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को के मुलाजमीन को भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है। कोई भी हमारा मुलाजिम अगर किसी भी बिजली चोरी में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी FIR होगी और उसके खिलाफ बकायदा उसके खिलाफ शोकाज वगैरह प्रोसीड करके उसको नौकरी से भी निकाला जाएगा। कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के दौरान 450 बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। चूनिया में 200 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जलालपुर, भटिया, ननकाना साहब, ओकाड़ा और शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर इजला में भी बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चोरी में मुलव्विस अनासर की मौके पर गिरफ्तारी और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तफसील जानेंगे फहद अजीज से। मुल्क भर में बिजली चोरों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का अमल जारी है। इस हवाले से मुकामी इंतजामिया के ताउन से
खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मेपको ने मुल्तान समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तर्जमान मेपको के मुताबिक ऑपरेशन के पहले रोज 293 अफराद चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1,67,00,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जबकि बाज के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कोयटा में बिजली चोरों और नादहिंदकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तर्जमान कैस्को के मुताबिक 24 घंटे में मजमूई तौर पर 68 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेस्को हुकाम के मुताबिक वापडा एहलकारों ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। आइस्को रीजन में बिजली चोरों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के बिजली कनेक्शंस को बिला तफरीक चेक किया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ जुर्माने आयद करने के साथ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। बिजली चोरों के साथ साथ गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जनरल मैनेजर SNGPL अजहर रशीद चौधरी का कहना है कि MD सुई नॉर्दर्न की हिदायत पर गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी हैं, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मावनत हासिल है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसर हुकूमती इक़दाम से कराची में भी चीनी की कीमत में कमी देखने में आई है। इसी हवाले से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। हमारी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजों के साथ अब चीनी भी एक अहम जरूरत बन गई है, जिसका फायदा उठाकर माफिया गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाने और कीमतें बढ़ाने के लिए जखीरा अंदोजी करते हैं। कराची में भी जखीरा अंदोजों ने नाजायज मुनाफा कमाने की खातिर जाली बहरान पैदा करके चीनी की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया, जिसके बाइस अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदामात के बाइस अब चीनी की कीमतों में नुमाया कमी आना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 5 रोज के दौरान होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 11 रुपए कमी देखी गई। इस वक्त चीनी होलसेल मार्केट में 164 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। गोदामों में जखीरा बहुत है। इस तरह के ज़खायर हैं जिसमें इदारे काम करें और हर इलाके की चेकिंग होनी चाहिए और उन हर गोदाम को खुलवाएं और उनको चेक करें। चीनी इतनी वाफिर मिकदार में मिलेगी कि आप सोचती रह जाएंगी कि चीनी बहुत थी तो कहाँ हम लोगों ने किया क्या इन गरीब अवामों। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी का बराह रास्त असर रिटेल मार्केट पर भी नजर आ रहा है। होलसेल मार्केट के जराये के मुताबिक चीनी की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। हुकूमती इक़दामात की बदौलत लाहौर में भी चीनी की कीमत फरोख्त में वाज़ेह कमी हुई है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आलमी सतह पर कीमतों के असरात की वजह से मुल्क में गुज़श्ता 6 माह के दौरान चीनी की कीमत 180 से 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। ताहम चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से चीनी की कीमत में न सिर्फ इजाफा रुक गया है बल्कि कीमत में कमी भी देखी जा रही है। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी के 50 किलो बैग की कीमत कम होकर 8,500 रुपए पर आ गई है। होलसेल में चीनी की कीमत 170 रुपए जबकि परचून में 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। 350 रुपया तोड़े की कमी आई आज। 8850 रुपए का तोड़ा था, 8500 का हो गया। चीनी भी कम हुई है ना, उसी वजह से ये गुड़ भी कम हुआ। 260 रुपए था वो आ गया अब 230 रुपए। जो 220 वाला था वो 200 आ गया, जो 200 वाला था वो 170-75 आ गया। लाहौर में चीनी की कीमत में कमी के बाद गुड़ और शक्कर की कीमत में भी कमी देखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम के बाद आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में मजीद कमी आएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। डेरा इस्माइल खान में महकमा फूड की जानिब से चीनी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी क्रैकडाउन में चीनी की सैकड़ों जखीरा शुदा बोरियां बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौके पर CGD ने कहा कि चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। माफिया ने मसनूई चीनी बहरान पैदा किया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर ने नौशहरा में कार्रवाई करते हुए रकूम की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से हुंडी और हवाला की मुतादिद रसीदें और मोबाइल फोन्स बरामद होने के बाद उनके दफातर को सील कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, जिला चित्राल में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और इलाके में तमाम बाजार, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और अस्पताल खुले हैं।
امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹیں بنا دی گئی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ چترال کے ڈپٹی کمشنر محمد علی اور ڈی پی او اکرام اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر کی صبح 5 بجے پاک افغان بارڈر پر ایف سی کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا، جس کا پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور چترال کے غیور عوام اور پاک فوج کسی بھی دہشت گرد کو برداشت نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا کہ ملکی دفاع کے لیے چترال کے غیور عوام کسی بھی دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ چترال کے غیور عوام بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ مقامی آبادی پاک فوج کی مدد کرنے کے لیے باہر نکل آئی اور اگلے مورچوں تک خوراک پہنچانا شروع کر دی۔ شہریوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہیں۔ مقامی عمائدین نے ایف سی ونگ کمانڈر کے ساتھ جرگے میں چترال کی عوام کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کی عدم استحکام پیدا کرنے کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت کے عہدے کی 5 سالہ آئینی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے 13ویں صدر کی حیثیت سے 9 ستمبر 2018 کو صدر مملکت کے منصب کا حلف اٹھایا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 44 کے تحت وہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم ورلڈ لیگ کے ریجنل ڈائریکٹر سعد بن مسعود الہار بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خیبر پختونخوا کے علاقے جانی خیل خودکش حملہ کے شہداء کے لواحقین کو ٹیلی فون کیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے 31 اگست کو بنوں میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء سے بات کی۔ صدر مملکت نے نائب صوبیدار صنوبر علی شہید، حوالدار آفتاب احمد شہید، حوالدار محمد عارف شہید، حوالدار محمد عمران شہید، سپاہی احمد علی شہید اور سپاہی محمد حسیب اکبر شہید کے ورثاء سے فون پر گفتگو کی اور ان سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر عارف علوی نے سپاہی ذیشان نزاکت شہید، عبدالرشید شہید اور وارث علی شہید کے لواحقین سے بھی بات کی۔ صدر مملکت نے شہداء کو سلام پیش کیا اور ان کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ سمندر کے سینے پہ لکھی جانے والی ایک انمٹ داستاں، قصہ دلیری کا، جس میں دشمن اپنے ہی گھر میں مقید ہوا، کہانی عادات کی مات کی، نہ داستاں، نہ قصہ، نہ کہانی۔ دوار کا ایک حقیقت ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 8 ستمبر یوم بحریہ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے کردار، شاندار کارناموں کا اعتراف اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم بحریہ کے حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سمندروں کی پاسبان نیوی 8 ستمبر یوم بحریہ پاکستان کی بحری سرحدوں کے محافظ و امین، بہادر اور غیور پاسبانوں کے جذبہ شجاعت کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے اور جدید اسلحہ سے لیس دشمن کے ناپاک ارادوں اور غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ 1965 کی جنگ کے وقت پاک بحریہ دشمن کے خلاف مکمل طور پر مستعد اور تیار تھی۔ اس جنگ میں پاک بحریہ نے بری اور فضائی افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور اس کی کارروائیاں محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات 4 ڈسٹرائر، 1 فریگیٹ، 1 کروز اور 1 آبدوز پر مشتمل پاکستانی اسکواڈرن نے بھارت کے فوجی اڈے دوارکا کے ساحلی قصبے پر موجود رڈار بیس تباہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب آبدوز غازی کو ہندوستان کی بحریہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور درپیش خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپریشن دوارکا میں دشمن کی بھاری نفری ہلاک ہوئی اور اسے بے پناہ مالی اور بیش بہا املاک کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ پی این ایس غازی آبدوز نے ممبئی میں موجود ہندوستانی بحریہ کے مغربی بیڑے کی نقل و حرکت کو محدود رکھا۔ یہ غازی ہی تھی جس کا دشمن پر ایسا خوف طاری رہا کہ جنگ کے آغاز پر ہی بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی۔ کم وسائل کے باوجود جنگ ستمبر میں پاک بحریہ نے عزم و حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی جنوئی تاریخ رقم کی، اسے خراج پیش کرنے کے لیے ہر سال 8 ستمبر کا دن یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔
आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जिनमें PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल थे। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया और पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमीन बोस हो गया। पाक बहरिया के निडर और अपने पानियों से 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मेस्वर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। भारतीय जंगी जहाजों ने जंग की बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों में खड़े ही गुजार दी। यौम बहरिया के मौके पर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा है कि पाक बहरिया हर साल 8 सितंबर यौम बहरिया के तौर पर मनाती है। दुश्मन के पानियों में दाखिल होकर द्वारका पर बमबारी खुद एतमादी, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मजहर है। ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके हिंदुस्तानी रडार स्टेशन तबाह करने के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया मादरे वतन के दिफा, खतरात और चैलेंजेस के खिलाफ मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा करती है। और नाज़रीन, पाक फौज के गाजियों ने हर साल की तरह जंग सितंबर के शहदा की यादगार पर हाजिरी देकर उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। लाहौर कैंट में वाक़े 18 बलोच मौजूदा 3 सिंध रेजिमेंट की तारीखी यादगार पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और वतन की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा को याद किया। हर साल 8 सितंबर को लाहौर के दिफा के लिए कलीदी जवाबी हमले की याद में यादगार शोहदा पर गाजी इकट्ठे होते हैं। इस साल भी 1965 के इन गाजियों में ब्रिगेडियर मुजफ्फर, लेफ्टिनेंट जनरल फारूक, हवलदार अब्दुल रज़ाक, मेजर जनरल गुलाम रसूल, सितारा बिसालत, ब्रिगेडियर शाहिद, ब्रिगेडियर उमैर, ब्रिगेडियर साजिद, कर्नल शुजा, मेजर आसिफ और कैप्टन खालिद ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और दुश्मन के खिलाफ कामयाब जवाबी हमले में लाजवाल तारीख रकम करने वाले वतन के 34 बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। 8 सितंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब इनको फाइनल अहकामात मिले कि इन्होंने BRB के पार जाना है। इन्होंने 23 कैवलरी के साथ मिलकर GT रोड का इलाका क्लियर किया। पाकिस्तान आर्मी ने अल्लाह का नाम लेकर तो उन पर हमला किया। उनकी जीप जो है वो जनरल जो कहता था मैंने लाहौर फतह कर लिया, तो जब हमने अटैक किया तो वो भाग गया, जीप छोड़ के भाग गया। जिसने सितंबर की 8 तारीख को साइफन क्रॉस किया था अरबर अजोडे के साथ, जंग के अख्ताम तक लाहौर फ्रंट के ऊपर वाहिद यूनिट थी जो BRB के पार रही। BRB के पार जाकर दुश्मन की सरकोबी का मिशन इसी मायनाज रेजिमेंट का कारनामा है। बसीन गांव से रावी साइफन तक के इलाके का दिफा करके इन जानिसारों ने वतन से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। लाहौर के इन सरफरोश मुजाहिदों को कौम का सलाम। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 15 भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन के लाहौर पर नाकाम हमलों के बाद भारतीय हाईकमान शदीद हिजान और परेशानी का शिकार हुआ, जिस पर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की हेडक्वार्टर बुलाकर धुलाई की गई। जनरल निरंजन प्रसाद ने दावा किया कि उसके ब्रिगेड लाहौर पर दस्तक दे रहे हैं। भारतीय हाईकमान ने जनरल निरंजन को फ्रंट लाइन पर जाकर हक़ाइक़ की तस्दीक का हुक्म दिया। ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर GOC 15 भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल निरंजन फ्रंट लाइन की तरफ निकल पड़ा। वाहगा के महाज पर BRB नहर पहुंचने पर पाकिस्तानी फौज ने भारतीय जनरल को आड़े हाथों लिया। शदीद कंफ्यूजन का शिकार बुज़दिल भारतीय जनरल अपनी स्टार प्लेट और झंडा लगी जीप छोड़कर भाग निकला। पाकिस्तानी 18 बलोच रेजिमेंट ने भारतीय जनरल की जीप, नक्शे और जंगी प्लान कब्जे में ले लिए। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की जीप फतह के निशान के तौर पर आज भी आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। जंग 65 के 8वें रोज भारतीय फ़िज़ाइया ने सख्त मायूसी के आलम में पाकिस्तान की गैर फौजी तनसीबात पर हमला किया। वज़ीराबाद, चिन्योट और सरगोधा के शहरी आबादी के साथ साथ सियालकोट के हस्पताल और ज़िले अदालतें भारतीय फ़िज़ाइया के निशाने पर थीं। रेडियो तेहरान ने ऐलान किया कि ईरान पाकिस्तानी भाइयों के वतन पर भारतीय हमले की वजह से सख्त तशवीश में मुब्तला है और उनका रद्दअमल पाकिस्तान पर भारतीय हमले की वजह से महदूद नहीं रहेगा। तुर्की ने भारत को धमकी दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर जारी हमले फौरी बंद नहीं करेगा तो तुर्की भारत से अपने सिफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म कर देगा। बरतानिया ने भी पाकिस्तान की हिमायत में भारत की फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी।
पाक फौज ने बर वक्त मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजियों को लाहौर और सियालकोट के इलाकों से मार भगाया। 21 भारतीय टैंक सियालकोट के इलाके में नाकारा बना दिए। पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से भारतीय फौजी साजो सामान कब्जे में लेने के अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज की हौसला अफजाई के लिए घरों से निकल आए। भारतीय फौज को पाक फौज के हाथों भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा, जबकि श्रीनगर और कारगिल के दरमियान 3 मील लंबी सड़क तबाह कर दी गई। पाकिस्तान नेवी ने कमाल महारत का मुजाहिरा करते हुए 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद द्वारका मजबूत बहरी अड्डा और रेडार स्टेशन राख का ढेर बना दिया। पाक फजाइया का लुधियाना के करीब हलवाड़ा के मकाम पर भारतीय फजाइया के अड्डों पर जबरदस्त हमला। 36 घंटों में भारतीय फजाइया के 70 से ज्यादा तैयारे तबाह कर दिए। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पर रहा है। यही वजह है कि इसने सितंबर 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया। जंग के 8वें रोज पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन नजीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन नजीर अहमद का ताल्लुक मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट से था, जो खेमकरन सेक्टर कसूर में तैनात थी और इसकी क़यादत ब्रिगेडियर AR शमसी कर रहे थे। कैप्टन नजीर अहमद फ्रंट लाइन पर बतौर फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे जब दुश्मन की जानिब से आने वाली गोली उनकी दाएं आंख में लगी, जिससे वो 8 सितंबर 1965 को शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। मेजर मोहम्मद फाजिल का ताल्लुक स्पोर्ट बटालियन से था और उन्हें वाहगा बॉर्डर के गांव अचुगलबंद पर भेजा गया। दुश्मन भारत की जानिब से अचानक हमले की वजह से बटालियन के असला डिपो में आग भड़क उठी, जिसके बावजूद मेजर मोहम्मद फाजिल असलहा बचाने की कोशिश में मसरूफ रहे। इसी असना में दुश्मन की गोली उनके सर पर लगी, जिससे कौम का ये बहादुर बेटा 8 सितंबर को वतन की हुर्मत पर कुर्बान हो गया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर का ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से था और वो कश्मीर में हाजी पीर पास पर तैनात थे। भारत की जानिब से हमले में शदीद जख्मी हो गए और 8 सितंबर को जाम शहादत नोश किया। कैप्टन अनवारुल हक का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से था, जो वाहगा बॉर्डर पर तैनात थे। बलोच रेजिमेंट को भारत की जानिब से शदीद हमले का सामना था, जिसमें 2 टैंक तबाह हो चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने BRB कैनाल पर दुश्मन पर जवाबी हमला किया और इस दौरान दुश्मन का निशाना बनकर शहीद हो गए। उन्हें शहादत के बाद मेजर का रैंक दिया गया था। कैप्टन नजीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक का नाम जंग सितंबर 1965 की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। इंसानी हकूक़ के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की क़यादत में कोयटा में एयरपोर्ट से सरीना चौक तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। हाथों में कौमी परचम थामे रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि कौमी वहदत से तमाम चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े की तहकीकात करने वाली मुश्तरका टीम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 सूबों, वजारत मजहबी उमूर और जन मतरूक वक्फ इमलाक समेत मुतल्लिका फरीकों से अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स तलब की हैं। अदालत ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। मामले की समाअत अब 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्त खारिज कर दी। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात और रेलवेज़ शाहिद अशरफ तारहर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। उन्होंने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी पायदार तरक्की के मयार तक पहुँचने के लिए कोशां हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि हमारी तवज्जो सैलाब से मुतासिरा इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अज़सर नौ तामीर पर है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती शोबों में किसीरुल-जहती ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अनीक अहमद ने कहा है कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ़ात को मुखालिफत न बनाया जाए। कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मैं जितना किसी मुसलमान का वज़ीर हूँ उतना ही एक मसीही का भी वज़ीर हूँ। फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और दुनिया भर में पाकिस्तान का वो तासुर फैले कि जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम
جس کو ہم لے کر آگے. قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے دین بہت نرم ہے. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے لاہور میں جامعہ اہل حدیث کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی امن و امان کے لیے ضروری ہے. ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر چلنا چاہیے. بھارت میں اقلیت عدم تحفظ کا شکار ہیں جبکہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے اور تمام مذاہب اور مسالک ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعہ افسوسناک ہے جس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے. نگراں وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ کوتاہیاں دور کر کے امید کی شمع روشن کریں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ لمحہ فکریہ ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمیں اس مسئلے کے فوری حل کی جانب بڑھنا ہوگا. انہوں نے یونیورسٹی کی ملک گیر خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی 12 سے 15 ستمبر کو لندن میں کامن ویلتھ یوتھ وزارتی کانفرنس کی صدارت کریں گے. نگراں وزیر خارجہ کامن ویلتھ کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. دفتر خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے G20 ممالک کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائی ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک افغان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلق عبوری افغان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز کے ذریعے G20 رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت پر بے گناہ کشمیریوں کا منظم قتل عام بند کرانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے دباؤ بڑھائیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آزادی پسند تنظیموں نے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں نئی دلی میں کل سے شروع ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے G20 رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کا نوٹس لیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں بدترین ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے واضح کیا کہ عالمی برادری کی خاموشی سے مقبوضہ علاقے میں مظالم جاری رکھنے کی بھارت کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. عالمی یوم خواندگی کے موقع پر KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد میں تعیناتی سے طلباء کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے جبکہ حصول تعلیم بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں پرتشدد کارروائیوں کے دوران اپنے عزیزوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے والے کشمیری طلباء اپنی تعلیم پر کس طرح توجہ مرکوز کر سکتے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام معروف دانشور تحریک آزادی کشمیر کے رہنما اور کشمیر میڈیا سروس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ تجمل الاسلام کی دوسری برسی کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. حریت کنوینر محمود احمد ساغر، محمد فاروق رحمانی، غلام محمد صفی، راجہ نجابت حسین اور دوسرے رہنماؤں نے کشمیر کاز کے لیے گراں قدر اور بے مثال خدمات پر شیخ تجمل الاسلام کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ شیخ تجمل نے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو بھرپور طریقے سے چیلنج کیا جس کی پاداش میں انہیں بھارتی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس چیئرمین فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور وزارت خارجہ کے حکام نے شرکت کی. نگراں وزیر خارجہ نے اجلاس میں برکس میں پاکستان کی رکنیت اور تجاویز کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برس چین نے برکس تنظیم کی توسیع کا اقدام روس کی حمایت سے شروع کیا، تاہم ابھی بھی برکس ممالک میں توسیع یا عدم توسیع پر اختلافات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ برکس میں شمولیت سے ایک اہم عالمی فورم پر پاکستان کو آواز مل جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور ترقیاتی منصوبے ہماری کارکردگی کا ثبوت ہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا عوام کی خوشحالی اور معاشی استحکام ہے. ایک سوال پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری کسی سے سیاسی دشمنی نہیں، چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. ایک اور سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز نہیں روکے جانے چاہیے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافیوں کے لیے پہلے صحت کارڈ پروگرام کا اجرا کیا. اس منصوبے کے تحت سرگودا سے سینئر صحافی اسجد منیر کا پہلے صحافی ہیں جن کا دل کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور انہیں ہیلتھ کارڈ کے تحت نجی اسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولت دستیاب ہوئی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ فنکاروں اور صحافیوں کی صحت کے تحفظ کا مقصد تعبیر میں ڈھل گیا ہے.
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब हुकाम ने मुलजिम को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया। एडमिन जज नसीम अहमद विर्क ने तफ्तीशी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत इक़्तिसादी बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। काहिरा में पाकिस्तान मिस्र बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 250 से ज़ायद कंपनियों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। राहील अंसार की रिपोर्ट देखिए। मिस्र में पाकिस्तान के सफीर साजिद बलाल ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम के जरिए ब्रादर ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के मुकम्मल इम्कानात को बुरुकार लाने के लिए दोनों हुकूमतों के जारी मैकेनिज्म और बाहमी कोशिशों को भी उजागर किया। मिस्र के पब्लिक बिजनेस सेक्टर के वजीर इंजीनियर महमूद असमत और मिस्री कमर्शियल सर्विसेज के सरबराह यया अल वसीक बेला अहमद ने ज़राअत, तवानाई, हाउसिंग, सियाहत, टेक्सटाइल और खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम, सियाहत और खुराक के शोबों में बाहमी तावन के मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 58वें यौम दिफा शहदाए पाकिस्तान के हवाले से श्रीलंका और म्यांमार में खुसूसी तकरीबात के इनेकाद दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाकर किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी श्रीलंका के सेक्रेटरी दफा जनरल रिटायर्ड कमाल गनरत्ने थे, जिसमें सफारती और दिफाई कम्युनिटी के सरबराहान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक बरकी ने पाक श्रीलंका के माबैन देरीना ताल्लुकात को अहम संग मील करार दिया। शुरका ने तकरीब के दौरान यौम दिफा और शोदा की अहमियत को उजागर किया कि जब मुट्ठी भर पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की बढ़ती जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके साथ साथ दिखाई जाने वाली खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और मुल्की दिफा के लिए दी गई कुर्बानियों की इक्कासी की गई, जिसे खूब सराहा गया। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर में सेंटर ब्राय एरोस्पेस और सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम पाक फ़ज़ाइया कौम का सरमाया इफ्तिखार के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में पाक फ़ज़ाइया के जंगी हीरोज़ को उनकी नुमाया कामयाबियों का तज़किरा करते हुए कहा कि इनकी बदौलत बेहतरीन पेशावराना महारत का हुसूल मुमकिन हुआ। बलूचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला में मनशियात की पैदावार और मनशियात फैक्ट्रियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। कोर कमांडर बलूचिस्तान की हिदायत पर पाक फौज, FC बलूचिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, लीवीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में अब तक 2000 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई हैं। 3000 किलोग्राम केमिकल क्रूड एफिडीन को भी तलब किया गया। पाक अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये ऑपरेशन बलूचिस्तान बिलखुसूस तालीमी इदारों को मनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए किए जा रहे हैं। वफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली शिलवानी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ग्लोबल हेल्थ समिट की तैयारियों का जायजा लिया गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की पहली ग्लोबल हेल्थ समिट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 70 ममालिक के 500 शुरका शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी सेहत ने इजलास को बताया कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट से ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अस्पतालों के अपग्रेडेशन के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने निश्तर अस्पताल मुल्तान, होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए हतमी तारीख दी। उन्होंने हिदायत की कि निश्तर अस्पताल मुल्तान को 15 जनवरी जबकि 31 जनवरी तक अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खानदगी का दिन 8 सितंबर को मनाया जाता है। रवां साल इस दिन का मौजू लोगों पर सरमायाकारी तालीम की तरजीह है। इस दिन को अफगानिस्तान की लड़कियों और खवातीन के नाम से मंसूब किया गया है, जिनको तालीम और तरबियत का हक फराहम नहीं किया जा रहा। नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। रवां साल ख्वानदगी के आलमी दिन का मौजू है लोगों पर सरमायाकारी तालीम की तरजीह, और इस दिन को अफगानिस्तान की लड़कियों और खवातीन के नाम मंसूब किया गया है, जिनको तालीम और तरबियत का हक नहीं फराहम किया जा रहा। ख्वानदगी के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी, गैर सरकारी और निजी इदारों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे, ताकि आम आदमी
اور بالخصوص ناخواندہ افراد کو تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے۔ Education is the basic right of every human being and it is the key to success for a progressive nation. We at the Princeton School would like to wish you the International Literacy Day. ماہرین تعلیم کے مطابق خواندگی میں اضافے کے لیے حکومتیں، والدین اور معاشرے کو سنجیدہ کردار ادا کرنا ہے۔ گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 55 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے۔ اس وقت پاکستان بھر میں 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم اور صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 70,000 سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے جامع منصوبہ بندی سے ملک کے تمام مدارس، فیکٹریوں، زرعی فارموں، یونین کونسلوں اور دیگر معاشرتی اداروں میں تعلیم بالغان کے مرکز کھولے جائیں اور روایتی طریقہ تدریس کے ساتھ موبائل، لیپ ٹاپ سمیت جدید ٹولز سے بھی استفادہ کیا جائے۔ محمد نید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ دادو میں 44، خیرپور 44، سرگودا میں 41، فیصل آباد 40، جبکہ رحیم یار خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 37، لاہور 38، کراچی میں 35، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔